السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم ٹو انشاءاللہ یور فیوریٹ فائنینشیل شو، جہاں ہم بات کرتے ہیں اسٹاک مارکیٹ کی، فائنینشیل نیوز کی اور وہ ساری باتیں جو آپ کی انویسٹمنٹ سے ریلیٹڈ اور امپورٹنٹ ہیں. تو آ جاتے ہیں، شروع کرتے ہیں اپنے ویکلی مارکیٹ راؤنڈ اپ. جو ہمارا پچھلا ہفتہ گزرا ہے، کافی ساری سیلنگ دیکھی گئی ہے. اگر ہم بات کریں مارکیٹ کی تو اوور آل سیلنگ کی گئی ہے. انویسٹرز نے پروفٹ بک کیا ہے آئی ایم ایف کے ریویو سے پہلے، وچ لیڈ ٹو دا اسٹاک مارکیٹ ٹو گو ڈاؤن بائی 3,900 پوائنٹس لاسٹ ویک. سیکٹر وائز دیکھا جائے تو آئل اور گیس ایکسپلوریشن، کمرشل بینکس، فرٹیلائزر، ٹیکنالوجی سیکٹر نے مارکیٹ کو نیچے کی طرف گرا دیا. اکنامک فرنٹ پہ انفلیشن جو مہنگائی ہے وہ 2.4% پہ آئی ہے. گورنمنٹ آف پاکستان نے ریز کیے ہیں 450 ارب روپے فرام دا ٹی بل آکشن، جس کو آپ ٹریجری بل کہتے ہیں. اس ہفتے ہمیں مزید فورن سیلنگ دیکھی ہے وچ ٹوٹل $9.88 ملین، اور اس ہفتے مارکیٹ میں ٹریڈنگ والیوم بھی مزید کم ہوئی ہے. یہ ساری سیلنگ اور پروفٹ ٹیکنگ انسرٹنٹی کی وجہ سے ہے، لیکن آن اے پازیٹیو نوٹ ہماری مہنگائی جو آئی ہے 2.4% پہ، دس از دا لوئسٹ 9 سالوں میں. پنجاب اسمبلی کو دیکھے آپ کی سندھ اور کے پی اسمبلی نے بھی ایگریکلچر انکم ٹیکس بل پاس کر دیا ہے بفور دا آئی ایم ایف ریویو. دس از ناٹ اے بائی اور سیل ایڈوائس، لیکن یہ جو پروفٹ ٹیکنگ کی جا رہی ہے یا سیلنگ دیکھی جا رہی ہے، انویسٹرز کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس ٹائم پہ جب مارکیٹ گرتی ہے اٹس اے گڈ چانس ٹو بائی اسٹاکس ایک ڈسکاؤنٹڈ پرائس پہ. اگین نو بائی اور سیل کالز، نو نیڈ ٹو پینک. اکنامک انڈیکیٹرز ہمارے پازیٹیو ہیں اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے. آتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جہاں ہم ڈسکس کرتے ہیں اکنامک نیوز اور اس کا آپ پہ کیا افیکٹ ہے. ہم واحد شو ہیں جو نہ ہی کہ آپ کو سمجھا رہے ہیں اباؤٹ فائنانسز اور اکانومی، لیکن اس کا افیکٹ بھی سمجھا رہے ہیں آپ کو. پرائم منسٹر شہباز شریف نے اپروول دیا ہے فار بگ ریفارمز، جو کہ ہماری میری ٹائم انڈسٹری کو واپس زندہ کر دے گا. میری ٹائم انڈسٹری آف پاکستان ایک اسٹرگلنگ انڈسٹری ہے جس کو نہ صرف گورنمنٹ کو ہیلپ کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ ایڈ کرتا ہے ٹو دا نیشنل ٹریجری ان فارم آف ٹیکسز، بٹ آلسو وہ ایک وینیو پرووائڈ کرے گا بزنسز کے لیے تاکہ وہ آسانی سے ایکسپورٹ اور امپورٹ کر سکیں گڈس ایفیشینٹلی. اگر ہم باقی ملکوں کو دیکھیں تو انہوں نے اپنی میری ٹائم انڈسٹری کو کافی بڑے اسکیل پہ آپریٹ کیا ہوا ہے. یہ انڈسٹری پرووائڈ کر سکتی ہے بہت ساری جابس، ٹیکس ریونیو. اس ریفارم پلان میں ریسٹرکچرنگ آف پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن شامل ہے اور ماڈرنائزیشن آف نیشنل پورٹس ماسٹر پلان بھی شامل ہے. یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ موو آپ کے ملک کے اسٹرکچرل ریفارم کا حصہ ہے، اور دو یہ ریفارمز ان ریفارمز کے تھرو پاکستان ایکچولی ہماری جی ڈی پی کی گروتھ ہوگی اور امپلائمنٹ کا لیول بڑھ جائے گا. آتے ہیں ہم اپنی سب سے بڑی نیوز کی طرف، جو ہے آئی ایم ایف وزٹ اور ریویو. آئی ایم ایف کی ٹیم وزٹ کر رہی ہوگی پاکستان کو تاکہ وہ ریفارمز ایویلیویٹ کر سکتے ہیں میڈ بائی دا گورنمنٹ، اور فار دا فرسٹ ریویو آف $7 بلین فنڈ فیسلٹی. اگر ریویو سکسیزفل ہوتا ہے، پاکستان گیٹس اپروول آئی ایم ایف بورڈ سے، پاکستان ان لاک کرے گا اگلے $1 بلین کی لون. یہ ان لاک کرتے ہوئے یہ لون ان لاک کر کے پاکستان نہ صرف فزیکل اسپیس میں بہتر ہو جائے گا، لیکن یہ ایک طور پہ اسٹیمپ آف اپروول ہے انویسٹرز کے لیے جو فارن اور لوکل ہیں، اور یہ اپروول فردر اسٹرینتھن کرے گا انویسٹر کانفیڈنس. اینڈ پاکستان کے لیے یہ اپروول اس کو فلفل کرنا پڑے گا جو کنڈیشن ہیں ہمارے جو آئی ایم ایف نے سیٹ کیے ہیں. یہ کنڈیشنز انکلوڈ کرتے ہیں آپ کا ایگریکلچر انکم ٹیکس کلیکشن ریٹیلر سے، اور ایف بی آر کا جو ٹیکس ریونیو ٹارگیٹ ہے. جیسے پہلے انفارم کیا گیا، پروونشل اسمبلیز نے بلز پاس کیے ہیں اور زیادہ تر کنڈیشنز آر ٹو بی فلفلڈ، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک پازیٹیو رسپانس ایکسپیکٹ کر سکتا ہے آئی ایم ایف سے. ہماری اگلی نیوز از اباؤٹ این آئی پی او. برکت فریجن ایگرو لمیٹڈ کا آئی پی او ہو رہا ہے. اٹ از اے جوائنٹ وینچر بٹوین اے کمپنی جو نیدرلینڈ سے ہے اور ایک پاکستانی کمپنی. ان کا پلان ہے ٹو ریز $1.23 بلین آن 17 اور 18 فیب. ایس ای سی پی نے اپروول دے دیا ہے اور آئی پی او ڈیٹس بھی دے دی ہیں. موونگ آن ٹو آور نیکسٹ نیوز، پرائم منسٹر شہباز شریف نے اناؤنس کیا کہ الیکٹریسٹی ٹیرفس کم کیے جائیں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بجلی تھوڑی سستی ہوگی. پرائم منسٹر نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ رینیگوشیٹ کریں ٹرمز اور کنڈیشنز آئی پی پی انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز جو ہیں
हैं और वो इंशाल्लाह पॉजिटिव होगा हमारी नेशन के लिए इन रिड्यूसिंग कॉस्ट्स. बिजली के सस्ते होने से एक आम शहरी को असर होगा, लेकिन ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पे क्या असरात हैं? चीप इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है कि लोअर इन्फ्लेशन. चीप इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है कि आपकी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ बूम करेंगी और फिर आपकी जीडीपी की ग्रोथ होगी. प्लीज़ हमारे साथ रहिएगा, हम आपको ज्वाइन करेंगे बिल्कुल एक छोटी सी ब्रेक के बाद. हम हैं द इनसाइड स्कूप और आप मुझसे बात कर रहे हैं, मैं हूँ मशल खान. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक. आप देख रहे हैं द इनसाइड स्कूप और मैं हूँ मशल खान. तो आज आते हैं हम आज की डेली मार्केट मूवमेंट पे, आज की चार्ट पे. ओके, तो करंटली हमारी मार्केट ट्रेड कर रही है एट 110,400 पॉइंट्स. सुबह से इतनी मूवमेंट नहीं देखी हमने, ना हमने पिछले हफ्ते में इतनी मूवमेंट देखी थी. वॉल्यूम डिक्रीज़ हो गए हैं. एसेंशली हमारी मार्केट जो है ये एक रिएक्शनरी मार्केट है. ये चीज़ों पे रिएक्ट करती है. दैट्स व्हाट रिएक्शनरी मीन्स, कि कोई न्यूज़ आती है तो रिएक्शन देती है. एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन जो आती है रिएक्शन देती है. एनी काइंड ऑफ इंटरनेशनल इवेंट रिएक्शन देती है. ऐसी चीज़ें आपकी मार्केट को मूव करते हैं. तो फिलहाल आई थिंक सब एंटिसिपेट कर रहे हैं कि आई गेस IMF रिव्यू के बारे में कि कहाँ चीज़ें लैंड करेंगी, हमारा मुल्क किधर है. बिकॉज आई थिंक एज पाकिस्तानीज हम थोड़ा डाउटफुल रहते हैं अपनी पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में. तो जब तक कोई अब न्यूज़ नहीं आएगी, आई थिंक द मार्केट हैज़ फाउंड दिस कंसोलिडेशन फेज बिटवीन 1,06,000 पॉइंट्स एंड 1,17,000 पॉइंट्स. हमारी पहली सपोर्ट है एट 109,400 पॉइंट्स. सेकंड है 108,000 और फिर अल्टीमेटली खुदा न खास्ता एट 106,000 पॉइंट्स. तो एसेंशली सपोर्ट लेवल्स वो सारी जगह होती हैं जहाँ से आपकी मार्केट सपोर्ट ले सकती है, वेयर इट कैन पिक अप मोमेंटम, जहाँ से आपके बायर्स ईगर होते हैं टू बाय बैक इनटू देयर शेयर्स. रेजिस्टेंस लेवल्स वो होते हैं जहाँ से आपकी मार्केट की टेंडेंसी होती है कि प्रॉफिट टेकिंग होती है, कि लोग फेयर बेस्ड एग्जिट्स लेते हैं एंड अदर थिंग्स. हमारे साथ फ़ोन पे मौजूद हैं इकोनॉमिक एनालिस्ट मिस्टर शेरदिल इस्माइल. शेरदिल, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. क्या हो रहा है मार्केट में? देयर इज नथिंग गोइंग ऑन. प्लीज़ कुछ करवा दें, किसी से बात कर दें. व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी टुडे. आई विश मेरे में इतनी पावर होती या हमारे पास इतना पैसा होता कि हम कुछ कर सकते, बट अनफॉर्चुनेटली हम तो एक नॉर्मल से इन्वेस्टर है और हमारे पास इतना कुछ है नहीं और हम मार्केट को एंटिसिपेट कर रहे होते. बट इट्स नॉट टू बी वरीड अबाउट. देखें पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है दैट वाज ऑन अ बुल रन फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम और फ्रॉम अराउंड 45,000 to 60,000 पॉइंट से लेकर हमारी मार्केट अराउंड 110,000 118,000 पॉइंट्स पर आ गई है, जहां उसने प्रॉफिट टेकिंग विटनेस हुई. प्रॉफिट टेकिंग एसेंशली ये है कि हमारी मार्केट में बाइंग हो रही थी काफ़ी लेवल की, काफ़ी सारे लोगों का काफ़ी सारा प्रॉफिट था जो उन्होंने बुक करना था और वो अभी उन्होंने बुक किया है. राइट, दे हैव रियलाइज द प्रॉफिट्स. उसकी वजह से आपको थोड़ी सी मार्केट नीचे आते हुए नजर आई, विच इज़ नॉट ए वरीइंग साइन. उसके साथ साथ अगर आगे चले, IMF की एक रिव्यू होना था जो हमने एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी 7.1 बिलियन डॉलर का हमने जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी IMF से ली थी, उसका हमारा एक रिव्यू है जो विच विल बी ऑन विच उसकी टीम आ रही है हमारे पास फरवरी के एंड पे और वो मार्च के फर्स्ट एंड ऑफ मार्च में स्टार्ट ऑफ मार्च में वो होगा. उस पर बेसिकली डिस्कस किया जाएगा कि वो सारी की सारी कंडीशंस जो IMF ने पाकिस्तान के ऊपर IMF ने पाकिस्तान को कहा था कि यार ये सारी की सारी कंडीशंस है, यू हैव टू वर्क ऑन दिस, यू हैव टू इम्प्लीमेंट दीज पॉलिसीज एंड दीज कंडीशंस, क्या वो हैज दैट टेकन इफेक्ट और नो. अच्छा, उन कंडीशंस की बात की जाए तो वो कंडीशंस बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड थी. उन कंडीशंस में ये था कि पाकिस्तान को सबसे पहले काम करना चाहिए अपने फॉरेक्स रिजर्व बढ़ाने पे, उसके बाद फिस्कल स्पेस क्रिएट करनी चाहिए. अब फिस्कल स्पेस किस तरह क्रिएट करनी चाहिए? उनको क्रिएट करनी चाहिए थ्रू टैक्स कलेक्शन एंड टैक्स रेवेन्यू के टारगेट्स दिए गए FBR को, कि आपके पास ये टैक्स के रेवेन्यूज हैं, ये आपके पास टारगेट्स है, यू हैव टू मीट दीज टारगेट्स.
तो वो टारगेट्स इंशाल्लाह थोड़े बहुत मीट नहीं हुए, बट मोस्ट ऑफ द कंडीशंस हैव बीन फुलफिल्ड. जहाँ तक आपको पता है, अभी आपने बात की एग्रीकल्चर बिल की, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स बिल जो है उसके ऊपर बात की आपने. देखा पंजाब असेंबली, सिंध असेंबली और केपी असेंबली सब मिलकर एक साथ they have come together and now they are on the same page. They have passed that bill. So keeping these things in mind, market थोड़ी सी नीचे है, but the future looks good. So शेदल, coming toward हमारा टॉपिक ऑफ मैं किसी चीज़ के बारे में बात करना चाहती थी, तो अगर आपके पास है कुछ कहने को प्लीज़ डू जॉइन मी. मैंने नोटिस किया कि जब हमारी प्रीवियस बुल रन चल रही थी, राइट, व्हाट आई लाइक टू कॉल, बहुत सारे डिजेनरेट ट्रेडर्स ने एंटर की मार्केट, राइट. व्हाट इज़ योर एडवाइस टू लोग जो मतलब एक बुलिश साइकिल में एंटर करते हैं और उनको समझ नहीं आता, उनको नेचुरली उस टाइम पे देर यूफोरिक, उनको लगता है कि हमेशा मार्केट ऊपर की तरफ जाती जाएगी, दीज आर अमेजिंग रिटर्न्स. वो भूल जाते हैं कि मार्केट की जो नेचर है इज़ वॉलेटाइल. तो व्हाट वुड यू से अबाउट डिजेनरेट ट्रेडिंग? अच्छा, डिजेनरेट ट्रेड के आपने बड़ा इंटरेस्टिंग लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, और ये आजकल की जो जेन ज़ी अवाम है, ये उनका एक बड़ा पसंदीदा लफ्ज़ है. जितने भी लोग सोशल मीडिया में ट्रेडिंग कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट की तरफ हैं और उधर से रुझान अपना लेते हैं. और अगर हम ये चीज़ देखें कि ये SCCP को भी नोटिस करना चाहिए कि अमेरिका में रेडिट के ऊपर और बाकी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो सोशल मीडिया में फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स बने हुए हैं, वो मार्केट को बहुत पॉजिटिव, वो मार्केट के लिए बड़े पॉजिटिव हैं. उनकी वजह से काफ़ी सारे लोगों के अंदर इंफॉर्मेशन का रुझान पैदा हुआ है, इंटरेस्ट पैदा हुआ है, मार्केट की इंफॉर्मेशन दी गई है. हाँ जी, उसके ऊपर रेगुलेशंस बिल्कुल होनी चाहिए कि उसको रेगुलेट करना चाहिए, क्योंकि दिस कैन आल्सो बी नेगेटिव. बट मूविंग फॉरवर्ड टू डिजेनरेट ट्रेडर आपका आया एज डिजेनरेट आपने बोला आया पाकिस्तान में ड्यूरिंग दिस बुल रन इन द बुल मार्केट. दीज वर ऑल दोज पीपल हु वर आइदर इन्वेस्टेड इन अनफॉर्चुनेटली क्रिप्टो और फॉरेक्स और सम अदर सॉर्ट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट. उसने खबरों में रोजाना देखा कि हमारी स्टॉक मार्केट रोजाना ऊपर जाई जा रही है, which made him open a stock market account and then that made him invest in our market. अब वो बंदा जो आया और उसमें से काफी सारे वो लोग थे जिनको इतनी इंफॉर्मेशन नहीं थी मार्केट की, उन लोगों ने जब आके मार्केट में एंट्री ली तो मार्केट वाज गोइंग, बाय मार्केट आई मीन द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज वाज ऑन अ बुल रन नॉन स्टॉप. मार्केट हमारी नहीं रुक रही थी एंड मार्केट केप्ट ऑन गोइंग टुवर्ड्स न्यू हाइज, केप्ट ब्रेकिंग न्यू हाइज. और उनके अंदर एक यूफोरिया पैदा हो गया, एक माइंडसेट पैदा हो गया कि इस मार्केट से लॉस करना तो है नामुमकिन है, क्योंकि जो चीज़ वो खरीदते हैं, जो चीज़ वो करते हैं, वो तो प्रॉफिट में हो जाती है. बट अनफॉर्चुनेटली अभी रिसेंटली मार्केट ने फिर बताया कि हर चीज़, इट्स नॉट a bed of roses, it's not always a profit. मार्केट भी वॉलेटाइल है, मार्केट भी रेंज बाउंड होती है, मार्केट नीचे भी आती है, मार्केट झटके भी देती है. तो दिस इज ऑल पार्ट ऑफ द गेम एंड एनीवन हु इज कमिंग न्यू शुड डेफिनेटली डू देयर ओन रिसर्च. दे शुड लर्न. आजकल आपके पास आपके जैसे के ये न्यूज़ चैनल है, जो आप जैसा एक प्लेटफॉर्म है, आप जिस तरह ये शो कर रहे हैं, इस पर आप लोगों को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, दिस इज वंडरफुल. उसके अलावा सोशल मीडिया में यू कैन लर्न सो मच इंफॉर्मेशन. यू कैन गो टू द स्टॉक ब्रोकर्स, यू कैन गो टू द स्टॉक एक्सचेंज, यू कैन गो टू फाइनेंशियल एनालिस्ट. काफी सारे सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट बैठे हुए हैं, आप उनसे जाएं, उनसे जाके सीखिए. आप सोशल लेकिन शेदल, आई थिंक जो हमारे आजकल के बच्चे हैं, राइट, इवन अगर हम ये बात करें, हम भी बड़े हुए हैं ड्यूरिंग द टाइम जहाँ स्मार्टफोन्स, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टिकटॉक, तो एसेंशली आपकी जो जेन जी और आपकी जो यूथ और जेन अल्फा जो ख़तरनाक किस्म का टेकिंग एवरीवन बाय स्टॉर्म, तो इनके जो आपके अटेंशन स्पैन्स हैं ना, दे वेरी शॉर्ट एंड किसी तरह से दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर, क्योंकि सोशल मीडिया इतना डिसेप्टिव हो चुका है, स्पेशली अबाउट मनी, अबाउट इन्वेस्टमेंट. अगर इफ़ इट वाज सो इजी टू मेक मनी, राइट, देन द होल वर्ल्ड वुड बी रिच. लोगों को, आई थिंक स्पेशली द यूथ, इनको नहीं समझ आता द डिफरेंस बिटवीन लुकिंग फॉर वन बिग पे आउट एंड कंसिस्टेंट गारंटीड wealth at, you know, toward the later stages of your life, just जो investment से आता है. For example, I was speaking to someone और someone was asking me कि तुम minimum holding period क्या रखोगी अपने दिमाग में investment का. I'm like, I don't take out my investments.
बिकॉज मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ अपनी फ्यूचर के लिए, नॉट फॉर द टाइम व्हेन आई एम हेल्दी एंड आई कैन अर्न. अभी तो आई कैन डू एवरीथिंग माई सेल्फ. लेकिन बच्चों को आजकल नहीं समझ आया, दे लुकिंग फॉर द नेक्स्ट बिग पे आउट रादर देन कंसिस्टेंट इन्वेस्टिंग एंड वैल्यू इन्वेस्टिंग. अच्छा, अनफॉर्चुनेटली नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट वर्ल्ड वाइड स्टॉक्स, क्रिप्टो और ये जितने भी वॉलेटाइल आपके एसेट्स हैं जो थोड़े से ऑन द रिस्की एंड होते हैं, जहाँ ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है वहाँ ज़्यादा प्रॉफिट भी इन्वॉल्व होता है. और काफ़ी सारे लोगों और इन्वेस्टर्स को अंदर दे आर बेटेड इनटू इट, दे आर ड्रैग्ड इनटू इट on the promises of high profits, right? But एक पढ़े लिखे इन्वेस्टर को they know very well how difficult it is to make money from the market while through trading. देखिए, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में आपको फर्क पता होना चाहिए कि ट्रेडिंग क्या होती है और इन्वेस्टमेंट क्या होती है. अगर आप इन्वेस्टमेंट करना आ रहे हैं और आपको यू डोंट हैव नो आइडिया अबाउट इन्वेस्टमेंट एंड यू आर एक्चुअली डूइंग ट्रेडिंग, या ट्रेडिंग के माइंडसेट से आकर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप अपने साथ ज्यादती और गलती कर रहे हैं. ट्रेडिंग बताता चलूँ इन्वेस्टर्स को, वो ये है कि आपने एक कमोडिटी या एक गुड या एक स्टॉक या कोई भी चीज़ ली आज, वो थोड़ा सा उसकी कीमत ऊपर गई तो आपने बेच दिया, आपको मुनाफा हुआ, वो आपने मुनाफा शॉर्ट टर्म पे बुक कर दिया जिस वक्त आपको मुनाफा हो गया. दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग. इन्वेस्टमेंट इज आपने उस कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल की, आपने फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स देखे, आपने ग्लोबल ट्रेंड्स देखे, आपने उनको विजुलाइज किया, आपने उनको एंटिसिपेट फोरकास्ट किया, और उस एनालिसिस के ऊपर, उस इंफॉर्मेशन के ऊपर आपने अपने पैसे लगाए, आपने उसमें आप उसके हिस्सेदार बने और आपने फिर वेट किया. अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर पर इस मार्केट में एंट्री ले रहे हैं और मार्केट छोटा मोटा ऊपर नीचे करेक्शन लेती है और आप डर जाते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली यू आर नॉट वेल इन्फॉर्म्ड. यू शुड बी केयरफुल एंड यू शुड बी रिलैक्स्ड, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता है वो कभी मार नहीं खाता until and unless उसकी इन्वेस्टमेंट गलत जगह पे हुई हो. बट मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट दीज पीपल डू, दे आर कमिंग फॉर बिग गेन्स. देखें, आपकी जितने भी लोग हैं, यू कैन नॉट मेक बिग प्रॉफिट्स इतना जल्दी से. यू कैन नॉट मेक आप एक रातों रात अमीर, और आपकी ये स्टॉक मार्केट एक लॉटरी की जगह नहीं है कि जहां रातों रात लॉटरी निकल आती है. लोग इसी माइंडसेट के साथ आते हैं, स्पेशली दिस डिजेनरेट ट्रेडर्स, और यहाँ ये फिर मार खाते हैं मार्केट में, क्योंकि मार्केट में आपका जो ऑपोजिशन होता है दैट इज इन्वेस्टर्स और बिग कॉर्पोरेशंस, बैंक, म्यूचुअल फंड्स. तो बात ये कहनी चाहिए कि anyone and everyone who is entering this market right now should be very careful, should be smart enough, should plan this out, should see कि कहाँ उसके पैसे आने चाहिए, कहाँ नहीं होने चाहिए, और ये भी देखना चाहिए कि करंटली मार्केट सिनेरियो क्या है, क्या चीज़ अच्छा परफॉर्म करेगी और क्या चीज़ अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी. ऑनेस्टली शेरदिल, मैं तो फिर भी PSX को बहुत सेफ जगह मानती हूँ, बिकॉज मैं अगर अपनी बात करूँ राइट अबाउट माय सोशल मीडिया, मैं इन्वेस्टमेंट की बहुत बात करती हूँ, लेकिन नेचुरली मैं चार्टिंग टूल्स, मार्केट ट्रेंड्स, दुनिया में क्या हो रहा है, इन चीज़ों के बारे में बात करती हूँ. मुझे ज़्यादातर जो मैसेजेस आते हैं ना, द रिगार्डिंग क्रिप्टो, एंड ये चीज़ मुझे बहुत वरी करती है, बिकॉज मैं जब इंटरनेशनली लोगों से बात जब करती हूँ, PKR तो USDT इज़ नॉट इलीगल, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन जो बाहर लोग बैठे हुए हैं, मैं कहती हूँ अगर आप इन्वेस्ट कर भी रहे हैं क्रिप्टो में, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी इनकम की मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की 5% डालें. लेकिन this generation, they're so obsessed with, you know, Satoshi Nakamoto and वो आपका जापानीज बहुत फेमस ट्रेडर जिसने $10,000 को $8 million में कन्वर्ट कर दिया. They need to understand कि they are up against Russian hackers, Chinese hackers, big institutions, जिन्होंने पैसे देके सारे सबसे बेस्ट ट्रेडर्स को हायर किया हुआ है. यू आर गोइंग अप अगेंस्ट दोज पीपल. और अगर आपको लगता है कि आप यूट्यूब वीडियोस देख के उन लोगों से जीतेंगे क्रिप्टो वर्ल्ड में, इट्स इंटरनेशनल स्टफ, आई डोंट थिंक दे विल. अच्छा, एक और बात मैं आपको बताता चलूँ, आपने जो बात बोली दैट इज़ वेरी गुड और बहुत इन्फॉर्मेटिव बात की, बट आप ये भी देखें जो क्रिप्टो एक्सचेंज है, जो क्रिप्टो के ऑनलाइन इंटरनेशनल ब्रोकर्स हैं, वो मार्केटिंग ही इस तरीके से करते बिकॉज दे आर स्मार्ट. Not only are they smart, they have employed the best people around this ecosystem. They have employed the smartest brains out there, जो आपकी ना सिर्फ साइकोलॉजी समझते हैं, बहुत हाई एंड पर वो डाटा को एनालाइज कर रहे होते हैं और उसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं. उसकी वजह से वो उन सब चीज़ों को कैप्चर कर जाते हैं, जिसके थ्रू वो कैप्चर कर जाते हैं एक बहुत बड़ी मार्केट. The gamification of the interface is essentially interface as well as psychology, how to drag in different people, how to drag in how to attract different people from different backgrounds, right? वो इस काम पे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है.
اور اس سکسیس کا ریزن ہی یہی ہے کیونکہ ان لوگوں نے مارکیٹنگ کو پراپر طور پر استعمال کیا ہے اور اس کو یوز کرتے ہوئے وہ کافی آگے چلے گئے. وہ لوگوں کی لالچ کو یوز کرتے ہیں ٹو دیئر اون ایڈوانٹیج. دیکھیں گریڈ تو ہمیشہ دنیا میں رہے گی, اور جہاں تک آپ کی بات جاتی ہے اوور آل مارکیٹ کو کیپچر کرنے میں ان کی جو مارکیٹنگ کا ایکسپینڈیچر ہے اور وہ جو ریلیونٹ مارکیٹنگ کر رہے ہیں, یہ میں آپ کے شو میں بتاتا چلوں, ایک ہوتی مارکیٹنگ کرنا اور ایک ہوتا ہے ریلیونٹ مارکیٹنگ کرنا. ریلیونٹ مارکیٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ آج کل کے ٹائم اور نیڈ کے مطابق اور لوگوں کی سمجھ اور جو ان کی انٹرسٹ کے مطابق آپ مارکیٹنگ کر رہے ہیں. اگر اب میں ابھی اس طرح پہ آ کے مارکیٹنگ ایسی کرتا ہوں, بڑے بڑے پیسے خرچ کرتا ہوں جو آبسلیٹ ہو چکی ہے, تو اس کا ریزلٹ مجھے کچھ آئے گا. دیز crypto exchanges, forex exchanges are spending money, but they're targeting it in such a smart way that they are able to capture, and now they have started a trend. کرپٹو ایک ٹرینڈ ہے. آپ لوگ آج کل چاہے آپ کہیں ڈھابے میں جا کے بیٹھے, یو سٹ ایٹ اے کیفے, یو سٹ ایٹ اے ریسٹورینٹ, people are talking about crypto investments and trading, but no one is talking about Pakistani stock exchange, no one is talking about Pakistan stock market. because I think کہ ہمارے یہاں you have a much higher likelihood کہ ہمارے 600 جو کمپنیز ہیں پبلک لسٹڈ 650 ان میں سے آپ کے زیادہ چھکے لگنے کا لائکلیہڈ ہے rather than like 14,000 plus coins in the crypto space. شیدل, thank you so much for taking the time out during market hours. حالانکہ آج اتنی والیوم نہیں ہے تو آج تھوڑا ریلیکس ہی کر رہے ہوں گے probably. Thank you so much. ہمارے ساتھ رہیے گا. We will be right back after a very short break. We have another guest with us. This is the Inside Scoop. میں ہوں مشل خان. السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم بیک ٹو دی انسائڈ اسکوپ. میں ہوں مشل خان اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مسٹر فرید عالم جو ایک بہت پرومیننٹ پرسنالٹی ہے اکنامکس اور فائنانس کی دنیا میں. تو آئیے ان سے تھوڑی بہت گفتگو کر لیتے ہیں. مسٹر عالم, تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ دا ٹائم آؤٹ. میں سمجھ سکتی ہوں آپ کا اسکیڈول بہت بزی ہے. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. I am so sorry, sir. There's a little interference in the mic. Could you say that again? We seem to be facing some technical difficulties, so tab tak main baat kar leti hu. Essentially, main abhi jo Mr. Ismail se baat kar rahi thi earlier about actually we have Mr. Fareed back with us. Yes, Mr. Alam, thank you so much for being with us. I'm with you. جی تو سر مجھے بتائیں کہ مارکیٹ کافی ٹائم سے کنسالیڈیٹ کر رہی ہے. ہم کب ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی موومنٹ آئے گی؟ مارکیٹ نے پرفارم اچھا کیا, لیکن آپ کی بات صحیح ہے کہ پچھلے 10 دن سے تھوڑی رینج باؤنڈ ہو گئی ہے. 2-3 ایشوز تھے جو اس کو مارکیٹ ابھی انڈیور کر رہی ہے, اور میرا خیال ہے کہ یہ 3 ایشوز, ایک تو جو IMF کا ریویو ہے اس کے اندر لوگ تھوڑا سا سسپٹیکل ہیں کہ کیا کیا ہوگا, کیونکہ فسکل سائڈ پہ پرائمری سرپلس تو آ گیا, لیکن ایک ہماری جو میجر کرائٹیریا تو میٹ ہے, بٹ آئی تھنک یہ جو FBR کی جو تھوڑا شارٹ فال ہے ریونیو کا وہ, اور ایک تاجر دوست اسکیم کے اندر پیسے ویسے تھوڑے کم آئے ہیں. سو آئی تھنک مور اور لیس وی آر آپٹمسٹک کہ یہ ریویو تو صاف نکل جائے گا انشاءاللہ خیر خیریت سے, کیونکہ ایگریکلچرل ٹیکس کی بھی بات ہو گئی, 3 پروونسز نے تو لگا دیا, بلوچستان رہ گیا ہے وہ بھی لگا دے گا. سو آئی تھنک دا کرائٹیریا آف دا IMF ول بی میٹ. انفلیشن اور انٹرسٹ ریٹ ہم سب کو ہی پتہ ہے کہ کنٹرول میں پاکستان میں آیا ہوا ہے الحمدللہ آفٹر لانگ ٹائم. اچھے ریکارڈس بن رہے ہیں. کرنٹ اکاؤنٹ کے سرپلسز بھی اچھے آ رہے ہیں. فرسٹ ہاف میں 1.2 بلین سے زیادہ کا آ گیا. آئی تھنک یہ جو تھوڑی سی انکوائریز جو بروکرز اور انویسٹرز اور چھوٹے سرمایہ کاروں کی جو شروع ہوئی تھی اس نے تھوڑا رور کریٹ کیا تھا امنگسٹ دا انویسٹر کلاس. حالانکہ وہ ریلیونٹ پرانے کیسز ہیں اور ریلیونٹ فورمز پہ چل رہے تھے, بٹ آئی تھنک اس نے تھوڑا سا نوائز کریٹ کی تھی سسٹم میں. مور اور لیس چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں. MSCI کا بھی ایک ریویو 11 فیب کو دوبارہ جو پیریوڈک ہے وہ ہو رہا ہے. ہاں, پہلے ایک آپ نے بات جو کی اس میں مجھے یاد آیا کہ جو انٹرنیشنل مارکیٹس کا لوگ تھوڑا سا لے رہے تھے اثر, کہ جب ٹرمپ نے لگانے کی کوشش کی ٹیرفس, تو
मार्केट्स इंटरनेशनल गिरी। हालांकि मैं ये समझता था और समझ रहा हूँ कि अगर टैरिफ कहीं लगता है तो इसको पाकिस्तान को तो उसका फायदा होता है, बिकॉज हमारे पास जो कमोडिटी प्राइसेस हैं वो गिरती हैं, तो हम क्योंकि हमारी बहुत सारा इन्हिसार इंपोर्टेड चीज़ों पे होता है, तो टैरिफ के लगने से कमोडिटी की प्राइसेस के गिरने से पाकिस्तान तो बेनिफिशियरी है। और वैसे भी ये टैरिफ लग रहा है तो हमारे पास जो री रूटिंग की ट्रांजैक्शंस आएंगी, जो कि असेंबली वाला काम है, जिस तरह ऑटो समझ लें और मोबाइल की समझ लें, तो यहाँ से बहुत सारी इंडस्ट्री री रूट हो सकती है, बिकॉज पाकिस्तान से अमेरिका की एक्सपोर्ट बहुत कम है और जिन मुल्कों पे इसका असर ज़्यादा है वहाँ तो डबल डिजिट्स में उनकी एक्सपोर्ट हैं टू यूएसए। तो आई थिंक इट इज़ अप टू अस कि हम इस वाली ट्रांजैक्शंस को, इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे कैपिटलाइज करते हैं। और मार्केट जाहिर है सब चीज़ों के रिफ्लेक्शन देगी। मार्केट के अंदर इस वक्त ये जो लल पीरियड है ये इंशाल्लाह आज या कल में दूर हो जाएगा, एंड आई एम ऑप्टिमिस्टिक कि मार्केट यहाँ से दोबारा अपना अपवर्ड रैली शुरू कर देगी। सर बहुत लोग ना, स्पेशली आपके जो रिटेल साइड के इन्वेस्टर्स हैं, वो बहुत स्केप्टिकल हैं कि यहाँ से आर वी गोइंग टूवर्ड बेरिश टर्न, तो क्योंकि आपका इतना एक्सपीरियंस है विद इन द स्टॉक मार्केट, विद इन द फाइनेंशियल वर्ल्ड इतने सालों का, तो आप बताना चाहेंगे द डिफरेंस बिटवीन हमारी मार्केट जिस चीज़ से गुजर रही है एंड व्हाट एन एक्चुअल बेयर मार्केट टर्न लुक्स लाइक। लेकिन जो फंडामेंटल जो चीज़ें मुश्किल से अचीव होती हैं इकोनॉमीज में और मुल्कों में और डेवलपिंग कंट्रीज में, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इन्फ्लेशन का कंट्रोल होना। और इन्फ्लेशन की बेसिस पे जो हमारा सेंट्रल बैंक या स्टेट बैंक है उसने जो फैसले करने, तो पहले वन लीड्स टू द अदर। अब इन्फ्लेशन कंट्रोल है, इंटरेस्ट रेट आप समझें अपने हाई से 10% नीचे है, करंट अकाउंट का बैलेंस सरप्लस में आ रहा है। तो मेरा ज़ाती ख्याल है जो चीज़ें मुल्कों को मुश्किल से अचीव होती हैं वो पाकिस्तान की इकॉनमी ने करके दिखा दिया। हाँ, जो मैंने खुद ही आपके पहले सवाल के जवाब में कहा कि एफटीआर का रेवेन्यू थोड़ा कम अचीव हुआ, लेकिन ये है कि उस अपने टारगेट्स हर साल जो अचीव कर रहा है उससे तो बढ़ के आ रहा है, लेकिन जाहिर है हमने एक बड़ा एक हाई लेवल पे टारगेट रखा हुआ था जो कि पूरा नहीं हुआ। वो किसी प्लस और माइनसेस, तो हम जो चीज़ प्राइमरी सरप्लस की बात करें तो हमारा इतना ज़्यादा सरप्लस है अल्हम्दुलिल्लाह प्राइमरी के, इसको जो प्लस यहाँ से एक्स्ट्रा निकलेगा तो हमारी जो टीम है आई एम श्योर दे आर गुड नेगोशिएटर्स, तो ये आप उसमें बैलेंस आउट करके बाकी चीज़ों में इसकी कसर निकाल लेंगे। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आई थिंक जो चीज़ें मुश्किल से अचीव होती हैं वो अचीव्ड हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिवली फैसले हैं या टाइम टेकिंग या जिनका अभी फैसले का कॉज एंड इफेक्ट आना है वो इम्पैक्ट मार्केट लेके बढ़ जाएगी। और मेरा ज़ाती ख्याल है कि मार्केट ये जो अभी रिसेंट हाई इसने बनाया था 1,18,000 और देर अबाउट का, ये वापस विद इन अ फोर्टनाइट ये दोबारा उसको टेस्ट करके ऊपर चली जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो सर एसेंशली मैं ऑफन इस शो पे बात करती हूँ about the fact कि हमारी जो institutions हैं somehow they have failed to market our stock market compared to आपकी crypto, आपके scammers, fraudsters, वो ज़्यादा marketing पे जोर देते हैं। Why is there a lack? You are spot on when you say this, because जो चीज़ अलाउड नहीं है उसकी भी अगर हम सोशल मीडिया पे बात गश्त समझें और अपने दोस्तों से और अपने ड्राइंग रूम टॉक्स और ये जो देखें तो हर एक को क्रिप्टो का, बिटकॉइन का, हर चीज़ का शौक है और somehow the other they make their way to invest either directly or through their siblings or somebody abroad. So I think इसकी थोड़ा फैन से ज़्यादा है, थोड़ी इसकी फॉलोशिप और डिस्कशन में जब आपने मार्केट की नॉलेज आपको हो, सेक्टर की हो, इकोनॉमी की हो, तो देन ओनली देन यू कैन डिस्कस। लेकिन ये जो टेक्निकल एनालिसिस होते हैं इसके अंदर यू डोंट हैव टू हैव अ ब्रॉडर इकोनॉमिक बैकग्राउंड टू डिस्कस दिस। तो अभी आपको जो ये क्रिप्टो की बातें हैं और ये जो कमोडिटी की बातें हैं, ये इंटरनेशनल जो भी आप इसको अपने 3-4 पॉइंट्स समझ लें उसको, तो यू कैन प्रिवेल अपॉन द ग्रुप डिस्कशन।
सो आई थिंक लोगों ने और हमारी जो सेकंड जनरेशन है या जो यंगस्टर्स हैं, इन लोगों ने क्रिप्टो बिटकॉइन में देखा देखी कमाया भी है, और इन लोगों को इसका थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं ये चीज़ें, बिकॉज ये इंटरनेशनल लेवल पे दे फील एलिवेटेड अबाउट themselves when they invest in a international commodity. That's fair enough. लेकिन सर हमारी जो institutions हैं, right, like हमारी brokerages, हमारी AMCs, any financial institution, even banks for that matter, I feel like बहुत ट्रेडिशनल मार्केटिंग चल रही है, यूथ को इंगेज नहीं किया जा रहा, बहुत अडल्ट मेल फोकस्ड मार्केटिंग है, women don't feel included. औरतें अक्सर कहती हैं कि हमें लगता नहीं है कि इन्वेस्टमेंट हमारे लिए, हमें तो हमेशा ऐसा लगा है, बिकॉज वो ऐसा इमेज बना दिया गया. तो हमारी इंस्टीट्यूशंस क्यों नहीं मार्केटिंग पे जोर दे रही हैं और क्यों नहीं अपने टिपिकल माइंडसेट से निकल के थोड़ा दूसरा, जिस तरह क्रिप्टो ने मार्केटिंग अडॉप्ट की हुई है उस तरह की मार्केटिंग क्यों नहीं कर रही? मैं आपकी बात से इत्तेफाक तो कर रहा हूँ, बट ये है कि इट इज एवरीबडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी. हमारे ऊपर ज्यादा इसका होना चाहिए ऑनरस. मुझे याद है स्टॉक एक्सचेंज हर साल करता था रिमोट एरियाज में, और टॉप 4-5 ब्रोकरेज हाउसेस को साथ लेके जाता था. आई थिंक यस, द केस एंड द कॉज ऑफ द कैपिटल मार्केट्स इन पाकिस्तान ये सही तरह आज तक प्रेजेंट नहीं किया गया. ये इसको हम सब लोग, खैर मीडिया, मुझे शुक्र है कि आहिस्ता आहिस्ता मार्केट में स्टॉक मार्केट की कवरेज में ज़्यादा आ रहा है. बट आई थिंक इसके ऊपर कोई प्रोग्राम करेंगे कि व्हाट नीड्स टू बी डन, कि जिससे हम लोग बैंक में पैसा रखवाने के बजाय एटलीस्ट उसका गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की इजारा सकूक में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करें, और जब उनको थोड़ी बहुत समझ में आए उसके बाद स्टॉक मार्केट में आए. स्टॉक में अगर खुद आने का टाइम नहीं है तो म्यूचुअल फंड के थ्रू आए. आई थिंक ये म्यूचुअल फंड की पेनिट्रेशन हमारे ब्रोकरेज हाउसेज से थोड़ी ज़्यादा है, बिकॉज उनके पास अच्छी मार्केटिंग टीम्स हैं. हमारे जो स्टॉक मार्केट के ट्रेडर्स हैं और जो मार्केटियर्स हैं, जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले हैं, ये लोग कोशिश तो करते रहते हैं, इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं या ऑर्गेनाइजेशन में जाके एक दिन का कैंप लगाते हैं. बट आई थिंक इट नीड्स much more than what we are doing so far. I think it needs more Gen Z penetration. It needs more Gen Z engagement. कि मतलब उनको TikTok और Instagram के थ्रू वो किया जाए. इनका attention span नहीं रहा कि वो seminars में बैठे हैं, पता है सर? आपकी बात सही है. अगर आप जैसे जो इस तरह 365 न्यूज़ कवर करता है इकोनॉमी को, तो बड़ी अच्छा रहता है. इस तरह बहुत सारे और भी लोग कवर करते हैं, और भी चैनल्स करते हैं. अगर आप लोग महीने 2 महीने में कोई अपने रखें कोई जूम मीटिंग और उस पर क्वेश्चन आंसर्स लें, तो आई थिंक इट विल हेल्प द कॉज. या बिल्कुल. वेल सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस. मैं जानती हूँ आपका वक्त कितना कीमती है, तो इंशाल्लाह हैव यू इन पर्सन ऑन आवर शो. लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. तो दैट वाज मिस्टर फरीद आलम. उनकी इनसाइट्स आर वेरी स्पेशल, क्योंकि एक बहुत प्रोमिनेंट फिगर हैं इन द इकोनॉमिक वर्ल्ड, और काफ़ी अरसे से ये वो लोग हैं जो बहुत साइकिल्स से देख रहे हैं मार्केट को. तो ये लोग जो आपको पॉइंट ऑफ व्यूज़ देते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपने नोटिस किया होगा कि जितने हमारे पास सीनियर लोग आते हैं फ्रॉम द स्टॉक मार्केट वर्ल्ड, फिक्स्ड इनकम की दुनिया से, म्यूचुअल फंड्स की दुनिया में, उनमें एक ठहराव है. वो ठहराव सिर्फ एक्सपीरियंस और वक्त के साथ ही आ सकता है. लेकिन इट गोज़ टू शो कि मार्केट के अप्स एंड डाउन्स आर नॉट दैट बैड. समटाइम्स आपको बस जूम आउट करके देखने की ज़रूरत होती है. अभी फॉर एग्जांपल मैं बहुत लोगों से बात करती हूँ अबाउट द स्टॉक मार्केट. लोग पैनिक करके मुझे मैसेज कर रहे होते हैं, स्पेशली वो लोग जिन्होंने एंट्री ही वहाँ की थी जब मार्केट शायद 115,000 पॉइंट्स पे थी या पीक पे थी, या मे बी इट वॉज कमिंग इन टू इट्स बुल रन. तो वो अपने प्रॉफिट्स को डिक्रीज़ होते हुए जब देखते हैं तो उनको थोड़ा डर लगता है, एंड दे पैनिक. लेकिन आई हैव रेड अ लॉट ऑफ बुक्स इन चीज़ों पे, राइट. मैंने बेंजामिन ग्राहम की किताबें पढ़ी हैं, मैंने वॉरेन बफेट के पॉडकास्ट देखे हैं, और ऐसे बहुत बहुत करंट भी लोग हैं जो बात करते हैं अबाउट इन्वेस्टमेंट. एंड उनकी कही हुई चीज़ों से सीखना इज़ एक्चुअली वेरी हेल्पफुल, बिकॉज श्योर आप अपनी मिस्टेक्स करके दैट्स द बेस्ट टीचर, राइट. लेकिन अगर आप दूसरों के मिस्टेक्स से सीखेंगे, यू आर वेरी लाइकली कि आपका जो मिस्टेक्स का रेशियो होगा वो बहुत कम हो जाएगा. तो डू ट्राई टू बी
مور ایموشنلیس اپنی انویسٹمنٹس کے بارے میں, بیکاز ہم جب انویسٹمنٹس کی بات کرتے ہیں ہم آج کل اگلے مہینے 6 مہینے بعد کی بات نہیں کرتے. وی آر تھنکنگ اباؤٹ دا فیوچر, 5 years, 10 years, 15 years, 20 years. تب آپ کو ریئل نمبرز نظر آتے ہیں, تب آپ کو ریئل ڈفرینس نظر آتا ہے. اگر آپ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی چارٹ میں اگر آپ وہ چارٹ کھول لیں اور آپ پورا زوم آؤٹ کر لیں تو آپ کو نظر آئے گا جہاں سے اسٹاک مارکیٹ شروع ہوئی تھی اور جہاں آج کھڑی ہوئی ہے, ہمیشہ دا مارکیٹ always goes up. There's a very famous saying actually کہ اسٹاک مارکیٹ اور انسان میں ایک چیز بہت کامن ہے کہ دونوں نے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اوپر ہی جانا ہے. تو کیپ دیٹ ان مائنڈ, وٹ ایور گوز ڈاؤن اٹ ڈز کم بیک اپ, اسپیشلی وین آپ ٹریڈنگ کی بات کر رہے ہوتے ہیں اور انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں. وی ول سی یو ٹمارو مارننگ ایٹ 11 AM. یہ ہے دی انسائڈ اسکوپ. آئی ایم مشل خان. ٹیک کیئر. خدا حافظ.